Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. Let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. तो जो मैसेज आपके लिए है उसको पिक कर लीजिए और let other messages go for other people because it's a collective reading. So there is a possibility that the whole reading may resonate with you, and there may be the possibility Wheel of Fortune का कार्ड अपने आप पॉपअप हुआ है. Okay, I'll take it out. Okay, so I was saying that there is a possibility that some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Collective reading है, तो pick those messages that you feel is resonating with you and let other messages go for others. एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड पॉपअप हुआ and I have kept it aside. I will include that in my reading. So it's a timeless reading, friends. So whenever you will reach this recording, it will definitely help you. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. अब तो आप लोगों को ये सब याद हो गया होगा, but still any listener, any new listener joining my reading, definitely everyone must know this. That is why I keep repeating these things. It's very important for all my listeners who are already there. उनको भी रिवाइज होना चाहिए, क्या पता कुछ भूल जाएं. और जो नए हैं तो नए के लिए, न्यू पीपल के लिए तो है ही. This is important. So I'm shuffling the cards right now. I'll just take out all the cards first and then I'll start reading. एक Wheel of Fortune का card we have included in the reading because it popped up while shuffling. आज मॉर्निंग में थोड़ा फॉग था, so it's still foggy. Okay, friends. And yeah, if you want any personalized reading, if you have any particular question in your mind for which you want an answer through my reading, then you can contact me on the email ID which is provided in the description box. Now I will take out the cards and let's quickly see what is God's guidance at present for my listeners. Okay, I'm taking out the cards now. The first one is the Wheel of Fortune that you already know. I'll keep it aside. Okay. Six of Wands, the Moon, Ace of Swords, King of Wands, Death, the Empress, Eight of Cups, Five of Pentacles, Ace of Pentacles, and Four of Swords. Four of Swords is the bottom of the deck. Okay, so I'll keep the deck aside now. And Wheel of Fortune, I'll keep it here now. Include it in the reading. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से स्टार्ट करते हैं. तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये. हुआ ये है, देखिए फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद का स्टेप है. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या होता है, दिल टूट जाता है, दिल पे बहुत गहरा आघात लगता है, तो वो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में होता है. और ये फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो आया है, ये एक स्टेप आगे है उससे. जब दिल टूट जाता है, एकदम परेशान जो है पर्सन जो है बहुत परेशान हो जाता है, एकदम हताश, निराश, और एक्चुअली उसके दिल पे आघात हो जाता है. उसके बाद का स्टेप यह है कि वो सरेंडर कर देता है, सरेंडर टू गॉड, हाथ जोड़ लेता है भगवान के सामने, और वो कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति में चला जाता है.
ओके, कॉन्टेम्पलेशन की स्थिति में चला जाता है, वो एनालाइज करने लगता है अपने एक्शंस को भी, जो उसके साथ हुआ उसको भी, और वो गॉड से प्रेयर करता है कि भाई मेरे बस का नहीं है अब कुछ भी, और जो मेरे साथ होना था हो गया, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, प्लीज़ संभाल लीजिए, स्थिति को संभाल लीजिए। तो ये सिचुएशन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में डिस्क्राइब होती है, और ये कार्ड के आने का मतलब है कि अभी आपकी लाइफ में भी मैं ऐसा ही कुछ सिचुएशन देख रही हूँ कि आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए हैं और आप भगवान को ही बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ जो बुरा होना था हो गया, अब आप संभाल लीजिए। ओके, वैसे अगर मैं आपका व्यक्तित्व देखूं तो द एम्प्रेस का कार्ड मुझको बता रहा है कि आप एक इस तरह के व्यक्ति हैं, यू नो मीन्स वेरी काम, एंड आप you believe in नेचर, एंड नेचुरली चीज़ें लाइफ में नेचुरली हों, आप इस तरह के पर्सन हैं। आपको कोई हड़बड़ी नहीं होती है, आप नेचुरली चीज़ों को होने देते हैं, इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। और एक ऐसा पर्सन नहीं होता जो मतलब एकदम कूल काम, ओके, एकदम वो नहीं चाहता है वो एक्स्ट्रा कुछ, वो कहते हैं ना कि अननेसेसरी का एक्स्ट्रा मेहनत करना या फिर अननेसेसरी का परेशान होना, इस तरह के नहीं। आप बहुत रिलैक्स वाले पर्सन हैं, रिलैक्स रहते हैं, और यू बिलीव इन यू बिलीव दैट थिंग्स टेक प्लेस नेचुरली, आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है, इस तरह के पर्सन हैं आप, इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। द मून का जो कार्ड है वो मुझे दिखा रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, और जो इंट्यूशन है आपका वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आप। और द मून का कार्ड प्रेजेंट है तो वो ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा, यू नो, बिकॉज द मून शोज़ अनसर्टेनिटी, मून जो है वो अनसर्टेनिटी को दिखाता है, मतलब जो चीज़ें जैसी दिखती हैं या जैसी आपको लगी, ओके, वो वैसी होती नहीं, रिज़ल्ट में वो ऐसा निकलता नहीं। तो मून जो है वो बहुत अनसर्टेनिटी का भी कार्ड है। एंड एज आई सेड कि इंट्यूशन बहुत पावरफुल है पर्सन की, बिकॉज बहुत पावरफुल इंट्यूशन को शो करता है द मून का कार्ड। ओके, और द मून के कार्ड में बहुत ही अपोजिट चीज़ें हैं। ओके, इस कार्ड के अंदर फुल मून भी है, क्रेसेंट मून भी है, वाइल्ड एनिमल भी है, टेम्ड एनिमल भी है, राइट, ग्राउंड भी है, वाटर भी है, मतलब आप देख रहे हैं कितना वेरिएशन है इसमें। तो जितना वेरिएशन वाला ये कार्ड है ना, उतना ही एक तरह से मैं कहूँगी अप्स एंड डाउन्स पर्सन के लाइफ में भी होता है। ओके, तो इस तरह का जो है आपका प्रेजेंट का सिचुएशन आई एम डिस्क्राइबिंग, इस तरह की आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन है। तो आपकी लाइफ में भी अभी बहुत कुछ अनसर्टेन चल रहा होगा, अनसर्टेनिटी का सीन बना हुआ है लाइफ में। ओके, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इस वक्त फ़िलहाल यू आर गोइंग थ्रू लोनलीनेस, यू आर गोइंग थ्रू डिसअपॉइंटमेंट, एंड डेफिनेटली आप अपने फिनेंस पे भी वर्क कर रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है तो वो मुझे ऐसा बिल्कुल ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी जो फिनेंस है आप उसको भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव अ ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। और ये एक सही समय है जब आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हेल्थ, वेल्थ, यू नो। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर बिगिनिंग। किस चीज़ का बिगिनिंग? अटेनिंग गोल्स। आपने जो भी अपने गोल्स बनाए हैं, जो भी आपने अपने लिए कुछ फ्यूचर इमेजिन किया होगा ना, तो स्टेपिंग स्टोन आप यहाँ पर इस टाइम में आप डाल रहे हैं। और ये या फिर डाल रहे हैं या डालिए अगर नहीं डाल रहे हैं तो, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दैट। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड प्रेजेंट है जो कि एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ही इशारा करता है। और बिकॉज दिस इन दोनों कार्ड्स में जो पेंटिकल है और जो स्वॉर्ड है वो डिवाइन के हाथों में है। मीन्स द स्वॉर्ड एंड द पेंटिकल, दे आर बीइंग हेल्ड by a hand
विच इज़ कमिंग आउट ऑफ क्लाउड्स, मतलब डिवाइन का सपोर्ट। आप जो भी करेंगे ना, जो भी नया ब्रेक थ्रू आप देंगे अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली डिवाइनली गाइडेड है। ओके, डिवाइनली गाइडेड है तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है, बिकॉज द स्वॉर्ड इज़ इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन, राइट। स्वॉर्ड इज़ इन द हैंड ऑफ डिवाइन, पेंटिकल इज़ इन द हैंड ऑफ डिवाइन। मतलब आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, वेल्थ को ग्रो करने के लिए भी जो स्टेप लेंगे उसमें भी डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी आपकी लाइफ में मुश्किल सिचुएशन आपने फेस किया है, जो कि मैंने 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से आपको बताया, ओके, द मून का कार्ड भी प्रेजेंट है, जो कि ऑफकोर्स समहाउ मानसिक उथल पुथल को ही दिखाता है। ओके, तो हाउ दैट आई शोड यू कि वो किस तरह से दिखाता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो उसके लिए जो डिवाइन है, डिवाइन एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो डिवाइन ही आपकी लाइफ में वो आपका सपोर्ट करने के लिए, द डिवाइन इज़ रेडी एंड ही इज़ सपोर्टिंग यू। ओके, तो सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड प्रेजेंट है वो यही बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में नया बिगिनिंग कीजिए। ओके, और आपका फ्यूचर कैसा है? आपका फ्यूचर है 6 ऑफ वंस, आपका फ्यूचर है किंग ऑफ वंस, ओके, एंड आपका फ्यूचर है 8 ऑफ कप्स। और मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो मैं यही बताऊंगी आपको कि इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी रीडिंग यही होगी कि आप 6 ऑफ वंस का कार्ड प्रेजेंट है तो डेफिनेटली दिस इज़ द कार्ड फॉर सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। आप जो भी काम करेंगे यू विल रिसीव द प्रेज, यू विल रिसीव द प्रेज ऑफ पब्लिक। आपको एडमिरेशन मिलेगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको आपकी तारीफ़ होगी, यू विल बी प्रेज्ड, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड दैट 6 ऑफ वंस इज़ अबाउट, एंड ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है। किंग ऑफ वंस, अब किंग ऑफ वंस जो है ये आपको प्रॉमिस कर रहा है योर लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। किंग ऑफ वंस जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड होता है। ओके, और इस कार्ड के प्रेजेंट होने का मतलब है कि आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, ओके, विद टाइम। ऑफ कोर्स जब आप भगवान को सरेंडर कर चुके हो और भगवान आपके लिए स्टेप ले रहे हैं तो इतनी मैच्योरिटी, इतनी उतनी क्या, आप में तो एकदम कंप्लीट मैच्योरिटी आ ही जाएगी। व्हेन यू नो द मैच्योरिटी टू थ्राइव, यू विल कीप प्रोग्रेसिंग। ओके, कहीं नहीं जाने वाला आपकी लाइफ से, सक्सेस कहीं नहीं जाने वाला। सो किंग ऑफ वंस एंड 6 ऑफ वंस, ये दोनों कार्ड प्रेजेंट हैं। तो दीज आर द कार्ड्स फॉर पब्लिक रिकॉग्निशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ओके, लॉन्ग टर्म सक्सेस एज अ ये किंग है तो एज अ लीडर, एज अ रूलर, राइट। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि अब आपके लिए ना, जब आप इस एनर्जी में चले जाओगे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाओगे, तो मटीरियल एक्यूमुलेशन, इट वोंट बी ऑफ मच वैल्यू फॉर यू। मटीरियल एक्यूमुलेशन आपके लिए, आपका गोल नहीं होगा, ठीक है। आपके लिए जो है ज़्यादा वैल्यू की बात होगी, टू सीक हायर गोल्स, राइट। आप सारे जो भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में है उसको आप एबंडन कर दोगे। दिस इज़ द कार्ड फॉर एबंडनिंग डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस, राइट। और ये 6 ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस एंड 8 ऑफ कप्स, ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि आप किस तरह की पर्सनालिटी में, किस तरह के पर्सन आप बनने जा रहे हो इन फ्यूचर। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में डेथ का कार्ड मौजूद है। डेथ का कार्ड मौजूद है, इसका मतलब ये, इस कार्ड के प्रेजेंट होने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। इस कार्ड के प्रेजेंट होने का मतलब है कि एंड ऑफ अ साइकिल, आपकी लाइफ में कोई एक साइकिल जो है वो एंड हुआ है और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो प्रेजेंट में आपके डेथ की एनर्जी है, ओके, एंड डेथ इज़ नॉट द बॉडीली डेथ, okay, that I have already mentioned in some previous reading that death is not the death of body. Here death means एक transformation of the person, death of the of your older self, right, और एक न्यू साइकिल का बिगिनिंग।
जो भी अभी तक लाइफ में जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस आपने झेले, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद का स्टेप है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में आदमी का दिल टूट जाता है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आदमी सरेंडर कर देता है टू गॉड, राइट। तो उसके बाद का ये स्टेप है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो पुराना सेल्फ है, ओके, जो दुख, तकलीफ़, डिसअपॉइंटमेंट, ओके, इसमें एकदम सना हुआ है, उसकी डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन और एंड ऑफ अ साइकिल। एक यूँ कहिए कि एक साइकिल एंड हुआ आपकी लाइफ से, कोई ऐसा पैटर्न एंड हुआ आपकी लाइफ से, और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। और ये प्रेजेंट की एनर्जी है, और द मून भी जो है वो प्रेजेंट की एनर्जी है आपकी। और मून प्रेजेंट पास्ट में, इसलिए बोलूँगी प्रेजेंट पास्ट दोनों की एनर्जी है। इस एनर्जी में आप हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऑफकोर्स आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन रहे हैं जिन सिचुएशन की वजह से आपने दुख को फील किया है, पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी आपने बिताया है, चीज़ें जो जैसी दिखी वैसी निकली नहीं, राइट। मैं यही कह सकती हूँ, मून का कार्ड यही दिखाता है। लेकिन आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं और आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत पावरफुल है, मून का कार्ड ये भी दिखाता है। और इतने सारे अपोजिट, इतने सारे वेरिएशन की चीज़ें हैं इस कार्ड में, तो उससे आप साफ समझ सकते हैं कि जब इतनी सारी वेरिएशन की चीज़ें एक साथ हैं तो ऑफकोर्स शांति कहाँ से होगी। ओके, हर चीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो लाइफ में शांति की सिचुएशन के लिए तो एक स्मूथ गोइंग होना चाहिए ना, बट यहाँ तो हर चीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। Okay, the presence of full moon and the crescent moon, then the wild animal and the tamed animal, the ground and the water, right? So opposite situations are there, and that is the same case in the person's life also. एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो मतलब आप एक बहुत ही नेचर लविंग पर्सन है, बहुत कूल, काम, कंटेंट विद एवरीथिंग। आपको मतलब होता है ना, एक आदमी होता है, एक पर्सन होता है जो हर चीज़ में नुस्ख निकालता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ में डिससेटिस्फाइड रहते हैं, बट आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो आपको एक्सटर्नल चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। मतलब आप छोटी मोटी चीज़ों में आप अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते, एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों की हरकतों से, मतलब कुछ भी ऐसा कोई एक्सटर्नल बात हो या कोई छोटी मोटी बात हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस कि वो रियली कोई सीरियस इशू हो जो आपको अफेक्ट कर रहा हो, तभी आप हिलते हो, तभी आप टस से मस होते हो। अदरवाइज़ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, आप अपने जीवन में मस्त हो, ओके। और इसी तरह के आप पर्सन हो, ठीक है। और आप, जैसा कि मैंने बताया, यू लाइक थिंग्स टू टेक प्लेस नेचुरली, आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई ये चीज़ें ऐसी क्यों है, वैसी क्यों नहीं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में आप उलझते नहीं हो, ओके। आप एकदम एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, रिलैक्स के मूड में रहते हो हमेशा, राइट। बहुत ही कूल और कंटेंट व्यक्ति हो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। अगर आप जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर नई शुरुआत कर लें, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एक अपनी लाइफ को नया ब्रेक थ्रू दे दें, और आप दीजिए और आप देंगे, बिकॉज द डिवाइन इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, ओके। तो आप 6 ऑफ वंस की एनर्जी में चले जाएंगे, किंग ऑफ वंस की एनर्जी में चले जाएंगे, जो कि पब्लिक रिकग्निशन, प्रेज, एडमिरेशन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है, ओके। लॉन्ग टर्म सक्सेस एज अ लीडर इसका कार्ड है, ठीक है। और आप में एक मेच्योरिटी, डेफिनेटली टू थ्राइव। देखिए, थ्राइव एक बार में कर लेना, ओके, वो तो एक बात है, लेकिन थ्राइव करते रहना, उस तरह की मेच्योरिटी आप में आ जाएगी, राइट। तो गाइज़, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड येस, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। येस, अभी मेरा ध्यान गया इसके ऊपर, ये मैंने साइड में ही रख दिया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड प्रेजेंट है, जो कि ऑफ कोर्स ये खुद गिरा था। तो आपकी इस कार्ड का मतलब तो अब मेरे सभी लिसनर्स समझ ही गए होंगे कि भाग्य का पहिया जो है वो घूमने वाला है। तो मतलब जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा है, जो कि ऑफ कोर्स इतना सुखदाई नहीं था, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, द मून का कार्ड प्रेजेंट है, जो कि मुझे आपका मेंटल मीन्स
मेंटल टर्बुलेंस और जो भी मैं बोलती हूँ कि बहुत ही प्रेशर, मानसिक उथल पुथल का सिचुएशन जो भी रहा था, जो भी दुखदायी सिचुएशन रहा था, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड होता है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, जो कि ये बताता है कि अब आपके समय का पहिया, भाग्य का पहिया घूमने वाला है। और मतलब कि एज आई से दैट दिस कार्ड given by God, because all the cards are given by God, but ये shuffling करते हुए अपने आप गिरा था, तो I think that God wanted this card to be read, to be included in the reading। तो आपके जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है वो वो घूमने वाला है, तो सारी जो सैडनेस है वो सब डिस्ट्रॉय होके हैप्पीनेस में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है, और हो जाएगी, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।